The difference between the possible and the impossible lies in a person's determination. And one of our alumni, Vinayak Soni, has set an example of such a determination that has led him to the height of success that defines him in the most perfect way. Let us have a view of his journey to success and the future plans he has set, as well as the way he is going to accomplish it. तो जीवीवी के अभी तक जितने भी बच्चों से हम मिले हैं, कहीं भी ऐसी चीज़ें इतनी अलग सुनने की टीचर से किसी के लिए नहीं मिली, क्योंकि जहाँ हम अभी आए हैं वहाँ सबसे पहले मेरे माइंड में सिर्फ एक वर्ड डाला गया, सिंसियरिटी, सिंसियरिटी एंड सिंसियरिटी। तो मिलते हैं जीवीवी के सबसे सिंसियर बच्चों से, जिनमें से एक है विनायक। सो विनायक, कैसा है ये टैग आपके लिए, द सिंसियर वन विनायक? it's a good one. And अगर मैं अपनी जर्नी शुरुआत से एक्सप्लेन करूँ, सो व्हेन आई वाज इन 11th एंड 12th, सो ऐसा मुझे कभी भी करियर के लिए प्रेशर नहीं किया गया, लाइक फ्रॉम माय पेरेंट्स साइड कि यू हैव टू परस्यू ओनली कॉमर्स और ओनली पीसीएम. That was my choice that I wanted to pursue for math science. Okay. So I started with opting math science plus physical education as an optional subject in 11th and 12th. And after that, I completed my 12th from Garima School. After that, मैंने एक्रोपोलिस में enroll किया for BSc Computer Science. So उसी के साथ में I was preparing for my government exams, government job exams, because actually as you know, means I was a studious and sincere person regarding my education. So the thing is, like, I was curious to know about our culture of India. So this made me go ahead for this government job. To choose government job as a career. So I prepared for that, but in between my backup plan was also there. So I chose BSc from Acropolis is that only because they have placements for BSc as well. So I just was doing the preparation for the government jobs, as well as I was preparing for that, completing my BSc. And after completion of my BSc, I got selected in Wipro company. I got campus placement from there only. And after that I joined Wipro because I was not sure, like, when I am going to join the government job, I'll get it or no. I was not sure. That is the reason I pursued my career towards this IT industry. So I got selected firstly in Wipro. After that 2 years I worked with Wipro, and then now currently I'm working with Ameriprise. And in between that also I work with one more company, which is Microland Limited. So there I work as a cloud infrastructure services engineer. Means we usually work on servers and everything. So it is our responsibility there to make the server up server should be up and running every time. So this is what my career path was. That's great. Yeah. तो ये सिंसियरिटी से तो मुझे बिल्कुल समझ में आ गया ये कैसा है. बट हाँ, अभी इसमें एक जर्नी ऑफ अचीवमेंट्स हम ये चीज़ जानना चाहेंगे. जैसे आपने भी बताया, आप पीएससी और सीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जा रहे थे, आपने फिर बैकअप प्लान भी रखा. तो ये जो एजुकेशनल ट्रिप है पूरी तरह से, ये एक आईटी की तरफ अब एक पूरी तरह कड़ों में चेंज हो गया. तो अधिकतर बच्चे पढ़ाई भी मतलब भागते हैं वो लोग ऐसी चीज़ों की तरफ. मतलब हमने देखा है कि क्रिएटिव कहीं ना कहीं आ गई चीज़ें, सोशल मीडिया एक तरह से कहीं ना कहीं हावी हो गया. बट एक आईटी इंडस्ट्री एक ऐसा हो गया, टेक्निकल डोमेन है पूरा. तो उस तरफ ये एजुकेशनल ट्रिप आपकी कैसी रही और किस तरह से टुवर्ड्स ये जर्नी हुई है कंप्लीट? So ऐसा मेरा मतलब कोई ऐसा मेन मोटिव नहीं था that I wanted to go into IT industry only. I just ये था कि people pursue for BE in computer science. So I was like, we can do something from BSc also. We should have that motivation. So I was having that motivation, and the government job helped me when I was like preparing for the examination, because when we go for Wipro interview and everything, they take one quantitative aptitude test. Quantitative aptitude, reasoning, as well as this one English. So that is also most needed thing. So what helped me is that preparation helped me in growing my career. Means after that I just prepared for some programming languages like C, C++ and everything, because this is the base of everything. So I started from there because that was in our college curriculum also.
So I prepared for that, and after that, till date, I don't have any sort of complaints in my career. Like if I say I worked with Wipro, so everyone was impressed there also with me. Like there was nothing like my manager, मतलब मैनेजर को ऐसा कभी बोलना नहीं पड़ा कि विनायक you have to do this work. Just ऐसे मतलब कि तुमने ये काम नहीं किया. I did that with my full dedication. मतलब डेडिकेशन को आपको डेडिकेशन और सिंसियरिटी कहीं पे भी आप रखोगे तो यू कैन अचीव एवरीथिंग. दैट्स ग्रेट. तो ऑब्वियसली इस डिस्कशन से इतनी तो चीजें क्लियर होती है कि आपने ऐसा कोई माइंडसेट नहीं हाँ, माइंडसेट कुछ भी नहीं कि आपको आईटी इंडस्ट्री ऐसी तरफ जाना है. तो कैसे ये माइंडसेट मतलब हुआ है एग्जैक्ट और एक्यूरेटली वो वैसा हुआ भी है जैसा आप चाहते थे? हाँ. और आप कहीं ना कहीं आज एमएनसीज में वर्क कर रहे हैं, अच्छे से रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, कहीं आप कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं. करेक्ट, बिकॉज़ इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. या हाउ इज इट, कैसे ये माइंडसेट क्रिएट हुआ? So mindset is like there is nothing as of like I wanted to go into IT industry only. Means parents ने भी कभी ऐसे वो नहीं बोला, ना कभी टीचर्स ने ऐसे बोला कि नहीं this industry is good for you. Just career path में जो होता गया, जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई, हमारे बैकअप प्लान में वो होता गया सब चीज़ें. जैसे मैंने बोला कि मेरा एक बैकअप प्लान था कि that I wanted to go into IT. Because there should be a backup. अगर आपका करियर को अगर आप ग्रो कर रहे हो तो you should not go with only one thing. You should have one thing in hand, so that अगर एक साइड से फेल होता है तो you should get another thing in your hand. Correct. So this is the reason, like that was my mindset, and that's how I went into IT. Okay, that's great. So what is your mantra for success? जो children हैं अभी वो IT में कहीं ना कहीं स्कोप देते हैं, because everyone knows that technology is the future. Exactly. So क्या आपका मंत्र है उनके लिए? उनके लिए I would say means you should be sincere towards something towards your education. Means you should be dedicated. Means try to explore things, try to gain knowledge from anywhere you can. Just मेरे को मेरे टीचर ने एक बात बोली थी, हर कॉलेज में बोला था मेरे को मेरे टीचर ने कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो हर चीज में क्यों वर्ड ढूंढना सोच लो, मतलब कि क्यों ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो देन यू कैन अचीव एवरीथिंग. सो दिस वुड आई वुड से मींस इफ यू डोंट नो अबाउट समथिंग देन रिसर्च अबाउट इट, सो यू विल गेट टू नो मोर थिंग्स अबाउट इट. एनी इंस्पिरेशन? कौन है आपकी इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन आई वुड से माय पेरेंट्स ओनली, because they did hard work for me and for my career also. Means they did not pressurize me at any moment. Means कभी भी ऐसा नहीं कि भाई तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे. हमने बोला कि हमें कोचिंग करना है, हमने बोला हमें आईटी की कोचिंग करनी है, उन्होंने आईटी की भी कोचिंग करवाई, गवर्नमेंट जॉब की भी कोचिंग करवाई. नो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस कभी नहीं. मेरी बहन है, so she is also pursuing law. She is from background from commerce. She opted commerce in 11th and 12th. After that she is pursuing law in Jabalpur National Law University. And ऐसा कि मम्मी पापा के साइड से ऐसा कभी प्रेशर नहीं था कि भाई तुमको यही फील्ड में जाना है या यही चीज परस्यू करो. तो जैसे कि मेरा है कि मैं पहले गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, बैकअप में ये रखा, तो आई एम इनटू आईटी एंड नाउ शी इज परस्यूइंग हर करियर इन लॉ. ओके, दैट्स ग्रेट. सो बहुत अच्छा लगा विनायक आपसे बात करके. जितना मैंने सुना था सिंसियरिटी मेरे वर्ड में सुबह से दिमाग में ना वर्ड डाला जा रहा है कि सबसे सिंसियर बच्चा जीवीवी का विनायक. तो हम मिले इस वक्त जीवीवी के सबसे सिंसियर बच्चे विनायक से. और अभी तक हम जितने भी गरिमायन से मिले हैं, जो भी हमारे प्राउड गरिमायन से अचीवर्स हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं सारी को-क्रिएटिव एक्टिविटीज थी और सब कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में क्रिएटिव हैं. विनायक भी उन्हीं में से एक हैं. बट आप अपने बच्चों के लिए और आने वाले कल के फ्यूचर को देखते हुए एजुकेशन इज मस्ट. आपको उस तरफ भी फोकस उतना ही करना होगा जितना आप अपनी को-क्रिएटिव एक्टिविटीज पे, अदर एक्टिविटीज पे करते हैं. इट डिपेंड्स ऑन यू. आपके बच्चे क्या चाहते हैं, आप उन्हें कैसे देखना चाहते हैं. सजेशंस और इंस्पिरेशन हमें गरिमायन से मिल ही रही है. टेक्नोलॉजी बिल्कुल फ्यूचर है. अगर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इसमें अपना स्कोप देखते हैं, उस चीज़ों को जानना समझना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो विनायक ने भी एक चीज़ हमें सिखाई कि क्यों इज द वर्ड, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो ये पेरेंट्स देखें, सीखें, बच्चों को समझाएं, अच्छा गाइडेंस दें, अच्छी काउंसलिंग दें. इसी के साथ होप वी मीट इन नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू सो मच.